the question only. And just a case, one devotee, he has two options. One option is taking rent or purchase a flat near temple, and another option is some far from the temple. So if near temple, then what will happen? If he becomes loose in the devotional service, then devotees generally come and knock the door. Why are you not coming temple? Or just in this way, it secures his devotional life. So in that way, but at the same time, the hot flat he is going to take near temple, it is very costly. It is one thing, and another thing is that, but it is securing his devotional life. But costly or not so good. It is very a small home or house flat. And the far flat, which is far from the temple, this is very good, very nice, and very spacious flat. But very many facilities are there. But that security is not there. If I become loose in the devotional service, then devotee will not. There is not chance, because devotees are staying very far. There is not chance that devotee will come and ask, why are you not coming? So which option is should take? This is a very, very broad question. It requires lots of commitment from the devotee as such. If a devotee is very sincere enough, because I have seen, you cannot expect all the devotees on the same level. There are some devotees who are very, very sincere, very committed, and very focused and fixed up. For them, staying near to the temple is a very blessing for them. But some devotees who are not come to that level, and they might feeling like a burden also, because devotees will be continuously coming to their house. They will be completely hampering will be happening, that why you are not coming for this program or that program, and they might fried out also. So for this particular type of a case, the Prabhu, you have to check it out, that what is that devotee's situation, what is his or her Krishna consciousness, and according to that we have to give the decision, Prabhu. At this moment of time, just it is not a blank check type of a thing that it is applicable for each and every person on the same level. It takes time, Prabhuji. Is it okay? Thank you so much. Hare Bol, Hare Krishna. Yes, part going, Prabhu. Yeah, Vardhan Agarwal, Prabhu. Can switch on your video, or we can just unmute you. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल, धन्यवाद प्रभु जी। मुझे लगभग 3.5 साल हो गए भक्ति में। मैं मतलब इस्कॉन में मैं अपने चाचा की वजह से आया हूँ, मतलब वो लेके आया मैं भक्ति में। तो वो लगभग 2 साल से वो भी सुन रहे हैं महाराज के लेक्चर। उनने मुझे भी शुरू करवाया लेक्चर सुनना। तो मतलब बहुत ज्यादा वो हो गया उनसे, मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा सरेंडर्ड है महाराज पे। फिर आपका सुना जब से 8-10 महीने से, तो जो आपका सुनने के बाद जो महाराज का सुनने में मतलब आपने बोला था ना एक बार, तो आप उनके तोता हैं। मतलब जो आपसे सुना महाराज से सुनते, वो सेम टू सेम आपसे फील होता सुनने में। तो क्वेश्चन ये है प्रभु जी हमारा, कि आपने बोला है जैसे फैमिली को क्वालिटी टाइम देना है, तो क्वालिटी टाइम देने में प्रभु जी मतलब प्रजल्पा में सुनना पड़ता है और निंदा सुननी पड़ती, मतलब और कुछ नहीं होता क्वालिटी टाइम देने में। तो फिर मतलब वो पता करना है कि कैसे क्वालिटी टाइम, कैसा टाइम देना है। प्रभु जी, अगर आपकी साधना बराबर स्ट्रांग रहेगी, आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस एकदम फोकस रहेगी, और आप जो है सेवा के मुताबिक आपका फैमिली को संभालने के लिए और आपका फैमिली को कॉम्पैक्ट रखने के लिए क्वालिटी टाइम देना चाहते हो, लेकिन आपका फैमिली को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्वालिटी टाइम दे रहा है, आपको उसकी चिंता मत करो। तो अगर आपकी साधना स्ट्रांग रहेगी तो कृष्ण आपको संभाल लेगा। प्रजल्प पे ऐसा कुछ आएगा ना प्रभु, तो क्योंकि आपकी साधना स्ट्रांग होने की वजह से जो है ना, वो प्रजल्प आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस में डिविएट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी अगर आप क्या बता रहे प्रभु जी? और जैसे प्रजल्प में उन वैष्णवों की निंदा भी सुननी पड़ती है अपने घर वालों से। जैसे मैं अपने चाचा की वजह से आया हूँ, तो चाचा को दोष देते सब कि इसने पूरा बिगाड़ दिया, इसको ये कर दिया। तो
पहले पता नहीं होता कि ये निंदा करने वाले हैं वैष्णवों की, उससे पहले भग जाएंगे अपन। मतलब थोड़ा सा सुनना पड़ता है, फिर पता चलता है कि ये निंदा कर रहे हैं, तो मतलब वो एक सेंटेंस तो सुनना ही पड़ता है, उसके बाद भग सकते हैं अपन। प्रभु तो वो प्रभु जितना सुन लिया है प्रभु जी, उसका अपराध आप का क्या होएगा? समझ गए, समझ गए प्रभु जी। आपको आपकी कृष्णा कॉन्सियसनेस अगर मैच्योर हो जाएगी, आपने कृष्णा कॉन्सियसनेस सीरियसली लिया है और आपने कंसिस्टेंसी आपके फैमिली मेंबर को दिखा। देखो, फैमिली मेंबर को प्रचार मत करना। प्रचार फैमिली मेंबर से होता ही नहीं है, वो लोग सुधरेंगे नहीं प्रचार से। वो लोग एक ही चीज समझेगा, अरे तू मैं मालूम है तू क्या है, पहला मैं तेरे को देखा है, अभी नाटकबाजी क्या कर रहा है, वही होगा। लेकिन अगर आपने कृष्णा कॉन्सियसनेस जो है सीरियसली लिया है और वो सीरियसली कंसिस्टेंसी रखा है, महीनों के महीनों, सालों के सालों, वो जो है वही कंसिस्टेंसी कृष्णा कॉन्सियसनेस का स्टैंडर्ड रखा है ना, थोड़े समय के बाद में आपके सामने कुछ भी गड़बड़ होगा ही नहीं। क्योंकि उसको शर्म आएगी आपके सामने कि ये व्यक्ति का स्टैंडर्ड अभी बहुत ऊंचा है, इसके सामने ऐसी चीप बातें नहीं किया जाता। लेकिन उसके पहले प्रभु आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत ये है कि आपको आपकी लाइफ में पूरी तरह से, देखो प्रभु जी, फैमिली मेंबर चेंज कभी होगा मालूम है? जब भी वो लोग देखेंगे कि तुम पहले क्या थे और अभी क्या है, और वो कंसिस्टेंसी देखेंगे, तभी वो सुधरेंगे। नहीं कि खाली बातें करने से। बाहर के लोग बातें करने से सुधरेंगे क्योंकि उसको आपका कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फैमिली मेंबर के साथ में ऐसा नहीं होता है प्रभु। उसको तो देखना पड़ेगा, वो देखेंगे कि तुम्हारे में चेंज आया है, और वो चेंज जो है ना, वो खाली टेम्पररी नहीं है, वो कंसिस्टेंसी और मैच्योर चेंज आया है। तभी जो है वो भी चेंज होगा, और वो भी प्रजल पकड़ने का बंद कर देंगे। उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी बड़े भाई। सो वेट फॉर दैट एंड स्टार्ट एंड मेक। और आपकी कृष्ण कॉन्सियसनेस मैच्योर करते जाओ प्रभु, सब चीज ठिकाने हो जाएगी। एवरीथिंग विल कम ऑन ट्रैक। इज इट ओके प्रभु? जी प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और था। हाँ। जैसे घर पे जो बाहर के मेहमान आते या कोई भी आते, अपन के घर से ही अपन बाहर से मिठाई लेके आता कोई, तो वो खाने को बोलते हैं कि भोग लगा के खा लो, मतलब बाहर का चीज मना है खाने को। तो जी हम नहीं खाना चाहते, पर उन लोग फोर्स करते बाहर की मिठाई जो भी होती है खाने को, तो उसके लिए क्या प्रभु जी करना? पहले मेरे को एक चीज बताओ, आप बाहर का कुछ भी नहीं खाते हो? नहीं खाते प्रभु जी, कुछ मीठा भी नहीं भी नहीं खाते? खाते। नहीं नहीं, खाते मैं प्रभु आपको जी। क्लियर पूछ रहा हूँ। आप नहीं कुछ भी नहीं खाते हो बाहर का? नहीं नहीं प्रभु जी। आप तो क्या खाते हो पूरे दिन का? आपका घर का ही सब चीज खाते हो? जी प्रभु जी। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आप इतना वही स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो, तो फिर प्रभु, फिर भी अगर घर का रिलेशनशिप बिगड़ता है तो थोड़ा खा लेना। वो ही पूछना था प्रभु जी, थोड़ा थोड़ी थोड़ा खा दिक्कत लेना। होती ना। क्यों? क्योंकि जो है प्रभु, थोड़े चीज के लिए घर का वातावरण बिगाड़ना मत प्रभु। थोड़ा प्रैक्टिकल होते जाने का है। जी ये प्रभु घर जी। के जो है, ये घर के फैमिली मेंबर के साथ में आपको पूरा जिंदगी निकालना है, तो उसके साथ में जी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बहुत फेनेटिज्म नहीं चल सकता है। प्रभु जी। इट ओके? और जी फिर प्रभु जी। अगर आपकी सिंसियरिटी रही कि थोड़ा माला ज्यादा कर लेना, उस दिन आपने बाहर का खाया नहीं है कभी भी, कृष्णा के सामने एक दो माला कर लो, और कृष्णा से याचना करो कि मेरे से मैं करता नहीं हो, लेकिन फैमिली को साथ में रखने के लिए कर रहा हूँ, मुझे संभाल लेना कि मैं तेरे को वो आदत ना लग जाए। कृष्णा विल टेक केयर। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी हरि बोल, हरे कृष्ण। यस पार्थ गोविंद जी। Yes, Anjali Mataji can ask. ओके, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, धन्यवाद माता जी। कह रहे थे कि नहीं पाते हैं कुछ डिवोटीज, मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जी। बहुत इनकंसिस्टेंट चल रहा है और ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, और इसीलिए बहुत दुविधा होती है मन में। यूट्यूब पर जैसे आज भी मैंने आपका वो सुना जी, सुबह जो आप सैटरडे संडे को जो मॉर्निंग में जपा टॉक देते हैं, वो मैं बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ। और बट आई एम नॉट एबल टू जॉइन समहाउ द सर्कमस्टांसेस, एंड ऐसे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है प्रभु जी। आई रियली फील सो सैड अबाउट इट कि बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं रह पाती मैं डिवोशन में। Mataji, you being a Mataji and I being a male member, many things I cannot discuss, nor you can discuss with me. So the best option in this matter ना, बहुत चीज ऐसी होगी कि मैं जो है प्रैक्टिकल एडवाइस भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपका हाउस होल्ड एक्टिविटीज में क्या होता है समझ में नहीं आता है। लेकिन
जो मैं जनरल आपको जवाब दे सकता हूं वो ये है माता जी कि अगर आपने आपकी सिंसेरिटी कृष्णा के सामने बताई है, आपने सिंसेरिटी के साथ में बताई है कि कृष्णा ये मेरी हालत हो रही है, मुझे इंटेंसली मुझे मेरी साधना करनी ही है, कहां पर भी मुझे साधना करनी है, मुझे मदद करो। तो मेरे गुरु महाराज हमेशा एक चीज कहते थे कि इफ यू टेक वन स्टेप टू कृष्णा, कृष्णा विल टेक 100 steps in front of you. Krishna doesn't want you to rot in this material world. Krishna wants to see that you come back home, back to Godhead. तो अगर आपने सिंसियरिटी के साथ में कृष्णा से याचना किया है कि कृष्णा मुझे सुधरना ही है, कृष्णा आपके जो लाइफ के अंदर जो भी डोमेस्टिक इश्यूज रहेगा वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी करके आपको लगाएंगे, लेकिन उसके पहले माता जी आपको कृष्णा के सामने कन्विंस करना पड़ेगा कि आप हकीकत में सिंसियर हो। That is between you and Krishna. And I can tell you one thing, Mataji, Krishna will take care. Krishna will definitely take care. I am not an elevated soul, Mataji. मैंने भी बहुत लाइफ में अंदर अप्स एंड डाउन्स किया है, अभी भी कर रहा हूं मैं, लेकिन मुझे पक्का पता है हमारा स्टॉक ब्रोकर जो होता है ना, शेयर बाजार के लोग, उसकी तो लाइफ इतनी हेक्टिक होती है, सुबह में 6 बजे से काम पे लगते हैं और रात को 11 बजे तक काम करते हैं, इतना हेक्टिक लाइफ होती है। लेकिन इतनी हेक्टिक लाइफ होने के बावजूद मैंने हमेशा मैं सुबह में मैं कृष्णा को एक ही चीज याचना करता था कि मेरे को संभाल लेना कृष्णा, ये मेरे को अभी प्रोफेशन भी छोड़ना नहीं है, एट द सेम टाइम मेरे को भक्ति भी करना है। somehow I can tell you माता जी, मेरे लाइफ के अंदर मैं एक बड़ा स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के अंदर में, हम लोग 5th बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आते थे, वहां पे मैं पार्टनर था और मैंने 19 साल उधर काम किया है। लेकिन वो 19 साल के अंदर ऑलमोस्ट नॉट ए सिंगल 3 दिन मैंने मिस किया था। 3 दिन के सिवा मैं कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में जपा किए बिना नहीं गया। उसको वो 3 दिन जो है लोग ऐसा समझते मैंने जपा नहीं किया, ऐसा नहीं है। वो 3 दिन में खाली जपा किए बिना ऑफिस में गया। ऑफिस में आने के बाद में मैंने खत्म किया था जपा। व्हाट आई मीन टू टेल यू इज, मुझे पक्का पता था कि ये कृष्णा ही मेरे को संभाल रहा है, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं ये ऐसे वातावरण में इतना बड़ा पोजीशन के बाद में भी मैं कैसे मेंटेन कर पाता हूँ, लेकिन सब हो गया और मुझे पक्का पता चल रहा था कि कैसे भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन कृष्णा करते थे और मदद करते थे। सो नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट माता जी, जस्ट क्राई आउट टू कृष्णा। कृष्णा के सामने रोना, सॉरी आई शुड नॉट स्पीक दिस थिंग ब्लंटली, कृष्णा के सामने, राधा रानी के सामने रो लेना कि अगर आप सिंसियर हो तो कृष्णा, देखो माता जी मैं आपको चीट कर सकता हूँ, आप मुझे चीट कर सकते हो, लेकिन हम कृष्णा को चीट नहीं कर पाएंगे। हमारा इन एंड आउट कृष्णा के सामने बोलना पड़ेगा। और अगर आप सिंसियर हो ना, कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, डेफिनेटली हेल्प यू आउट। कृष्णा को अच्छा नहीं लग रहा है आप इधर रगड़ते रहो, आप सिंसियरिटी बताओगे तो कृष्णा भाग करके रास्ता निकाल देगा। कहा है देखो, आप थोड़ा विचार करो माता जी, ये सब डिवोटीज जो हमारे साथ में जपा में आ रहे हैं, मैं तो किसी को पहचानता नहीं था, ना कोई मुझे पहचानते थे। कैसे हम आ गए, कैसे मिल गए हम लोग, और कितना इंटीमेट रिलेशनशिप बन गया है। कृष्णा को सेंटर में रख, ये कैसे हो गया, ये कृष्णा ने किया है। जब कृष्णा इतना कर सकते तो आपकी लाइफ में भी नहीं चेंज कर पाएगा। हैव ए फेथ, कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर। इज इट ओके? थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। यस पार्थ गोविंद जी। ओ दिल्ली माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, मेरा ना एक रियलाइजेशन है, साथ में क्वेश्चन है। रियलाइजेशन ये कि अभी मेरे को 8 years हो गया है कृष्ण भक्ति में, और उससे पहले मैं कभी भक्ति नहीं की थी। लेकिन मैं स्टार्टिंग कॉन्स्टेंटली दर्शन आरती जाती थी डे 1 से पूरे 7 साल तक दर्शन आरती जाती थी। लॉकडाउन में भी ट्राई करते थे कि दर्शन आरती मेरी कभी मिस ना हो। मैं कहीं नहीं जाती थी, रिलेटिव्स के घर कहीं पे भी, ताकि मेरा दर्शन आरती मिस ना हो खाली। तो मेरा कांस्टेंट था। लेकिन जब मैंने ये जपा, मेरा जपा उस टाइम पे पूरा नहीं होता था, लेकिन मैं दर्शन आरती जाती थी, उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जपा पूरे दिन में खींच तान के करते थे। लेकिन जब मेरी दीक्षा हुई, दीक्षा को अभी 3-4 साल हो गए प्रभु जी, 4 years हो गए, तो मेरे गुरु महाराज ने सिर्फ मुझे एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप ऑफिस जाने से पहले जपा करके जाए। तो मैंने ये सुना, मैंने कोशिश किया, लेकिन फिर भी आई फेल्ड, बिकॉज मैं सोचती थी दर्शन आरती तो मैं छोड़ नहीं सकती। तो दर्शन आरती में जाती थी 7:15 मंदिर हर रोज। तो जब फिर भी मेरे को ना लगता था कि महाराज ने ये बोला है तो मुझे ना ये करना है, लेकिन मेरे अंदर गिल्ट था, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। 3 साल हो गया, 4 साल हो गया दीक्षा को मैं कर नहीं पा रही हूँ।
और कितनी भी सेवा करूं लेकिन महाराज की इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करी जो मुझे डायरेक्टली उन्होंने बोला करने के लिए ना, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो उसके बाद जब मैंने ये उस टाइम लिटरली फाइट कर रही थी अपने आप से ना कि कैसे मैं इस चीज को दोनों को करूं, लेकिन जब ये जपा मैंने मई में स्टार्ट किया आपके साथ तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा जपा करना कि सुबह जपा भी हो रहा है और मेरे को फील भी इतना अच्छा हो रहा है। देन आई लेफ्ट गोइंग, आई हैव स्टॉप गोइंग टू टेम्पल। मैंने दर्शनार्थी जाना छोड़ दिया क्योंकि मेरे को ऑफिस से जाने से पहले घर का काम करके और कुकिंग करके जाना होता था। तो मैंने रिप्लेस कर दिया जपा को अपने दर्शन के साथ। उसमें मुझे दिक्कत भी नहीं हुई रिप्लेस करने में, लेकिन मन में ही रहता था दर्शन ही नहीं जा रही, मैं भगवान को देखे बिना रह कैसे जाऊंगी, मतलब ऐसे ये चलता रहता था। लेकिन फिर भी आई सेलेक्टेड कि जपा मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है और मैं मेरा रोज सुबह हो रहा है, ऑफिस जाने से पहले हो रहा है, पूरा दिन अच्छे से जा रहा है। देन मैंने ये चीज समझ ली कि ठीक है, दर्शन को मैं कभी कभी चली जाती थी, नहीं जाती थी, ऐसे चलता रहा। फिर ग्रेजुअली क्या हुआ प्रभु जी, अभी कार्तिक में मेरे घर में विग्रह इंस्टॉलेशन हुआ, तो ये फिर मेरा जपा क्लैश हो गया विग्रह सेवा के साथ कि सुबह उठती थी तो मैं मंगला आरती करती थी, इसीलिए मैं कार्तिक में विग्रह इंस्टॉलेशन हुआ, कार्तिक में बहुत मेरा जपा मिस हुआ, बहुत मतलब पूरा महीना लगभग कभी आ रही हूँ कभी नहीं। मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं फिर डीटी सेवा करूँ सुबह उठ के या जपा करूँ। तो फिर मेरे को वीक लगने लगा कि मैं डीटी सेवा कर रही हूँ लेकिन जपा तो मैं आप इस ग्रुप के बिना कर ही नहीं पा रही हूँ। मतलब जब मैं नहीं करती उस दिन मैं पूरा दिन स्ट्रगल करती हूँ जपा करने के लिए। मैं सोचती हूँ कोई यूट्यूब वीडियो मिल जाए जिसमें सब लोग तो जपा कर रहे हो, एटलीस्ट मैं देखते देखते उन लोग को तो जपा कर लूँ। तो मैं इतनी एडिक्टेड हो चुकी हूँ इस चीज के लिए कि अभी मैं बिना भक्तों के जपा नहीं कर पाती हूँ। अच्छा ही नहीं लगता मुझसे, एक राउंड भी नहीं होता है, ऐसे लगता है कितना बोझ है मेरे ऊपर। तो कल भी मेरा जपा मिस हुआ बिकॉज मेरी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। तो मैं पूरा दिन, मैं जानती हूँ मैंने 25 राउंड शाम को 5 बजे 6 बजे तक किया टांग के कि ये तो करना है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो अब मुझे दर्शन जाने ना जाने से थोड़ा ठीक प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अभी मैंने जब दोबारा इसको स्टॉप किया डीटी सेवा सुबह और मैंने अपना फिर जपा ही शुरू किया कि नहीं इसके बिना नहीं चल पा रहा। तो अब क्या होता है कि मैं इतनी भी जल्दी सुबह उठ पाती कि मैं 4 बजे डेली उठ के पहले डीटी सेवा करूं, और क्योंकि मेरे घर में 2-3 विग्रह हैं तो मैंने एक बार रघुनाथ प्रभु जी को भी कॉल किया था, उनसे भी सलाह ली थी कि प्रभु जी मुझे कैसे डीटीज को सेवा करनी चाहिए घर पे, बीइंग अ लेडी और वर्किंग, और डीटीज मेरे पास राधा कृष्ण भी हैं, छोटे गौर निताई भी हैं, गोपाल जी भी हैं। तो मैंने सोचा मैं कैसे मैनेज करूँ, तो उन्होंने मुझे काफी कुछ समझाया था और वो मुझे हेल्प भी किया। तब उन्होंने मुझे जो समझाया मैंने फिर जपा ही शुरू करा डीटीज को। मैंने सोचा मैं जपा के बाद ही उठाया करती हूँ, लेकिन अब मंगला आरती 0 हो जाती है। अब जैसे जपा 8 बजे कंप्लीट करती हूँ तो मंगला आरती करती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि 8 बजे कोई मंगला आरती कर सकता है। तो ये सब चीजें बड़ी बुरी लगने लग गई मुझे ना, लेकिन अभी भी स्टिल आई एम चैंटिंग एंड देन आई एम वेकिंग अप डीटीज लेटर। तो वो प्रभु जी कोई अपराध तो नहीं है कि इतना लेट डीटीज को उठाना, डीटीज अभी भी मेरे सो रहे और बड़े बड़े डीटीज आई हैव राधा कृष्ण एंड मुझे अभी ऐसा लगता है कि क्या करूं, लेकिन जपा मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है मैं जपा करती हूँ तो डीटीज तो सुन ही रहे हैं और मैं इस अपने आप को इसी तरह समझा रही हूँ। तो इज दिस द राइट वे प्रभु जी? माता जी एकदम खुला बोलूंगा। हाँ प्रभु जी। हमारे घर पे टू सम एक्सटेंट डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड अच्छा है। मैं डीटी वर्शिप में जरा भी मेरे को इतना टेस्ट नहीं है जितना आज, अभी आज की बात कर रहा हूँ। अभी कल तुलसी और रघुनाथ रात को मेरे कल से 2 बजे आए और वो 2 बजे आने के बाद में अभी रघु ऑलरेडी निकल भी गया। आज छुट्टी है, आज जो है पूरा पुष्याभिषेक के लिए पूरी तैयारी करने गया। पुष्याभिषेक की तैयारी करेगा, पूरा दिन रहेगा, रात को कभी आएगा पता नहीं है। एवरीथिंग कंप्लीटली मींस व्हाट आई मीन टू से इज दे आर कंप्लीटली इनटू डीटी वर्शिप। अभी आप कृष्णा के सामने अगर आप जाकर के बोले कि कृष्णा में लेजीनेस नहीं दिखाया किधर भी, कृष्णा कॉन्शियसनेस में मैंने कहां पर भी आलस्य नहीं दिखाया, मैंने किधर भी जो है तुम्हारी सेवा किए बिना मैंने वो टाइम के अंदर कोई सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं किया है, मैंने कहां पर भी मेरी नेग्लिजेंसी कहां पर भी नहीं दिखाया। टाइम तो एक ही है और व्यक्ति भी एक है, मेरे पास कोई 10 स्वरूप नहीं हो सकता है, मैं एक ही रह सकती हूँ। तो अगर कृष्णा के सामने, आपके डीटीज के सामने जाकर के कहो कि जो है अगर ये टाइम पे मुझे तुमको उठाना चाहिए लेकिन वो टाइम के अंदर अगर मैं माला कर रही हूँ तो वुड यू अप्रिशिएट मी टू चांट और यू विल अप्रिशिएट मी टू वेक यू अप, बिकॉज इट इज अ कलयुगा और कलयुग के अंदर 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज ऑन जपा। और वो भी छोड़ो,
सब चीज छोड़ दो, विचार भी वो भी मत करो, खाली आप आपकी जात को कॉन्सियसनेस में चेक करो। आपको जो नरिशमेंट कृष्ण कॉन्सियसनेस का जपा से मिल रहा है उतना डीटी वर्शिप से नहीं मिलता है, क्योंकि कलयुग के अंदर इसका ही प्राधान्य दिया गया है। महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया है खाली हरिनाम को प्रचार करने के लिए, हरिनाम का प्रचार करने के लिए संन्यास लिया था, नहीं कि डीटी वर्शिप करने के लिए प्रचार संन्यास लिया था। अभी आप भी चेक करिए और आपको भी समझ में आ जाएगा कि इट इज गिविंग यू लॉट्स ऑफ रिलीफ। अगर ये स्टैंडर्ड है तो हम जो है अगर डीटीज को 10 बजे भी उठाएंगे तो क्या मान रहा है, हमने चीटिंग तो नहीं किया, हमने नेग्लिजेंस कर नहीं रखा है। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के अंदर दर्शन ही सुबह में 10 बजे ही खुलते हैं। उधर मंगल आरती सिर्फ साल में एक ही दिन होती है, जन्माष्टमी के दूसरे दिन सुबह में, और रोज सुबह में 10 बजे के पहले दर्शन खुलते नहीं है बांके बिहारी। अभी बांके बिहारी मंदिर तो आप तो दिल्ली वाले हो, मेरे से तो ज्यादा आपको समझ में रहेगा। वाई वो लोग कैसे समझते कि कृष्णा छोटे बच्चे और वो सुबह में जल्दी नहीं उठते, उनका ये भावना है। सो व्हाट आई मीन टू से इज यू हैव टू चेक टू टेल टू कृष्णा दैट आई एम नॉट नेग्लिजेंस, मैं नहीं दिखा रही हूँ, मैंने आलस नहीं दिखा रहा है, मैं कहां पर भी लेजीनेस नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन ये करने के बाद में अगर मेरा जपा अच्छा करने के बाद में अगर मंगल आरती करूंगी ना, मेरी कॉन्सियसनेस बहुत अच्छी होगी। And finally, Krishna wants only your consciousness. He doesn't want anything else from it. So I don't feel so it is anything wrong. अभी हम लोग तो मेरा अभी इतना स्टैंडर्ड होने के बावजूद हमारे घर पे मैं सुबह में रोज मेरे ऑल्टर को नीतीश को उठाता हूँ। हम लोग घर पे सुबह में मंगल आरती नहीं करते माता जी, क्योंकि मेरे लिए एक ही चीज है, मंगल आरती करूँ कि माला करने बैठू। मैं नहीं करता, हम लोग मंगल आरती नहीं करते, हम शाम को ही आरती करते। वी आर वेरी क्लियर। और मेरे को नहीं लगता है हमारे घर पे वो स्टैंडर्ड मेंटेन भी होगा, क्योंकि रघु का कोई ठिकाना नहीं है, रात को 2 बजे आएगा तो सुबह में मंगल आरती में कहाँ बैठने वाला है। So we are doing it this way, Mataji. So you take your own call, you check it out. See, one thing is that we have to be very clear. I don't cheat myself with taking any excuse of Krishna consciousness. That is not this. मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, आप मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन हम कृष्णा को धोखा नहीं दे पाएंगे। We have to be very in and out clean. अगर in and out clean है ना, तो कृष्णा डेफिनेटली आपको इंस्पायर करेगा। I'll give you some little bit of my experience. माता जी, before coming into Krishna consciousness, मैं सब जगह पे घूम के आया, रोज इतना मैं भागा हूँ। सोमवार को मैं हमेशा महादेव जी का दर्शन करने जाता था, मंगलवार को मैं हनुमान जी के पास जाता था, बुधवार को किधर जाता था पता नहीं, गुरुवार को सरस्वती माता के पास जाता था, शुक्रवार को संतोषी माता के पास जाता था, शनिवार को वापस हनुमान चालीसा करता था, ना सुंदरकांड करता था, ना तेल चढ़ाने जाता था, रविवार को गायत्री माता के पास जाता था। सब जगह पे घूम के आया। और फिर मेरे को हरे कृष्ण महामंत्र मिला, तो मैंने क्या किया कि मैं हरे कृष्ण मंत्र भी करने लगा और दूसरा भी सब करते रहता था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या सच्चा है क्या झूठा है, और मुझे किधर भी किसी को धोखाबाजी नहीं करना था, मुझे कन्विक्शन चाहिए था। और मैंने खुद ने देखा है कि जब भी बाद में मैं हरे कृष्ण मंत्र देता था और फिर बाद में सब मंदिर में जाता था ना, तो मुझे वो डीटी से सामने से बोलते थे, अंदर से ऐसा आवाज आता था कि तू जिधर जिसके लिए आया था उसका तो मैंने रिजल्ट दे दिया, अभी क्यों आता है यहाँ पे। So then I stopped everything. I stopped everything. So you check it out, and Krishna will inspire you if you are sincere. Is it yes, okay? Yes, प्रभु जी, I am so fortunate कि मैं आपसे मई से अटैच हुई, and then finally I got installation of DTs at my home, श्री राधा गोपीनाथ। तो सीनियर ब्रह्मचारीज आए थे, एंड देन उन्होंने राधा गोपीनाथ जी इंस्टॉल किए, तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगा। और प्रभु जी, एक छोटा क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे अभी हम ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, तो ऑनलाइन कनेक्टेड है, हमारे टेम्पल से भी जो हमारी क्लासेस हैं ऑनलाइन हो रही हैं इस टाइम पे, तो वो भी हम सैटरडे संडे कनेक्ट होते हैं। आपने भी जैसे बताया कि अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने प्रभु जी को बताया था कि जैसे 200 लोग एक साथ जुड़ जाते हैं तो कन्वीनियंट हो जाता है, एंड देन नाउ ऑनलाइन प्रीचिंग तो सब जगह पे बहुत ज्यादा हो रही है। तो और इसकी ऑनलाइन प्रीचिंग होने के कारण क्या हो रहा है प्रभु जी, जैसे जो हमारी संडे क्लासेस होती थी, फिजिकल क्लासेस, वो सब अब बंद हो चुकी हैं, सब ऑनलाइन होती हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी, एक बार आपने ही बताया था कि राधानाथ महाराज जी को आपने पूछा था, हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जी को, कि आप जब उनके रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते हो तो आपको उतना एंथुसियाज्म नहीं मिलता, लेकिन जब आप लोगों के साथ बैठ के सुनते हो तो बहुत मिलता है। एंड देन महाराज ने रिप्लाई किया था कि बिकॉज ऑफ देयर वाइब्रेशंस,
तो प्रभु जी इसको हम कैसे समझे कि अब तो मंदिर बहुत ज्यादा, मेरा तो बहुत ही कम हो गया, जो मैं डेली जाती थी अब तो हफ्ते में 2 दिन मुश्किल से, शाम को चली जाती हूँ कभी कभी, लेकिन रोज नहीं जा पाती। तो ना तो कोई मैं भागवतम सुन रही मंदिर जाकर, ना मैं कोई फिजिकल एसोसिएशन ले रही हूँ। कोई हाउस प्रोग्राम होते हैं या ऐसे प्रोग्राम्स में तो हम चले जाते हैं, वो भी कभी कभी, वो भी बंद हो जाते हैं जैसे ही कोई भी कोविड सिचुएशन बढ़ जाती है। तो कैसे हम इस चीज को समझे प्रभु जी कि हाँ अभी हमको वही टाइप का वाइब्रेशन हमको मिल रहा है क्या इसके अंदर? बिकॉज जपा करते हुए तो मैं बहुत फील कर रही हूँ कि हाँ मुझे भक्तों की बहुत जरूरत ऐसी पड़ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यही है जिनकी वजह से मैं जपा कर पा रही हूँ। एक दिन ये नहीं रहेंगे या तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ये कनेक्शन, ये वाइब्रेशन हमको जो ऑनलाइन मिल रहा है, क्या ये सेम वाइब्रेशन हमको फिजिकली मिल रहा है प्रभु जी? इसको मैं समझ नहीं पा रही, थोड़ा सा आप समझाएंगे? वेरी वेरी क्लियर है माता जी। जो है अगर हमको जो है चांस मिलेगा हम सत्संग करने के लिए, सो वील डेफिनेटली गो। बट जाते वक्त जो है हम चेक करते रहेंगे कि हमारा नरिशमेंट कहाँ से भी बंद नहीं होना चाहिए। जहाँ पे मैक्सिमम नरिशमेंट मिलता है, अभी फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कि मैं भी जो है, मैं गुरुवार के दिन, अभी मैंने एक दिन नक्की किया है, मैं गुरुवार को गोपीनाथ मंदिर जाता हूँ। और जैसे राधानाथ महाराज आ जाएंगे तो आई विल नॉट मिस अ सिंगल लेक्चर ऑफ राधानाथ महाराज इन राधा गोपीनाथ टेम्पल। मैं यहाँ से सब छोड़ करके चला जाऊंगा क्योंकि मुझे नरिशमेंट वहां से मिलता है। So I'll be very clear about it. So wherever you're getting nourishment, you should definitely do it. Or sometimes obligations भी होता है. Sometimes because I sometimes go to Gopinath temple because we have such a strong bond. इतना strong bond है गोपीनाथ में ब्रह्मचारी से सब लोग का। I cannot leave them and they cannot leave me. इतना bond है और वो मुझे bond हमेशा maintain करना है। तो अगर ऐसी कुछ है आपके लाइफ के अंदर तो you do it. 1-2 दिन इधर मिस करो और वहां पे जाओ, लेकिन कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना है कि तुम्हारा नरिशमेंट के अंदर कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दैट वी हैव टू बी कॉन्स्टेंटली चेकिंग। महा मुसीबत से माता जी हरिनाम का टेस्ट मिला है, करोड़ों जन्मों के बाद में ये हाथ में टेस्ट आ गया है। जैसा व्यक्ति एक पारस मणि को कितना संभालता है ना, उससे 1000 टाइम्स मोर यू हैव टू टेक केयर दैट मेरा हरिनाम का टेस्ट कहां से भी, क्योंकि यही मेरे को पृथ्वी पे वक्त काम लगने वाला है। प्रभु जी यहाँ तो इधर को तो मिस करने का बिल्कुल भी इच्छा होती ही नहीं है। कभी कोई सेवा भी ऐसी मॉर्निंग की आती है तो मैं उसको चेंज करती हूँ या मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ से मिस ना हो पाए कभी भी। मेरे को खुद ही अच्छा नहीं लगता कि ये मिस ना हो सुबह। तो मैं देखती हूँ जैसे आपको भी कहीं जाना होता है, आपने बताया अभी प्रभु जी एक जो नहीं रहे, शरीर छोड़ दिया। मैं सोच रही थी कि देखो प्रभु जी ने भी ये नहीं कि भागा, हम क्या होता है भागा दौड़ी मचा देते हैं चले जाते हैं छोड़ के तुरंत, लेकिन मैं देखती हूँ आपको देख के सीखती हूँ कि प्रभु जी जो है देखिए आप भी बैठे हैं, उनके इतने नियर जो उनके फ्रेंड डिवोटी हैं वो चले गए लेकिन फिर भी प्रभु जी माला करके जाएंगे। तो ये सब चीजें मैं सीखती हूँ आपसे। और क्या बोलते हैं, इसी तरीके से मैं भी कोशिश करती हूँ कि नहीं कुछ भी चीज हो तो पहले माला करके ही चले जाऊं। तो इसको नहीं मिस करना चाहती हूँ मुझे, बिल्कुल भी नहीं चाहती। मेरा कहना है माता जी, मैं ये सब पहले क्यों प्रायोरिटी रखता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि कॉन्सियसनेस इससे ही अच्छी होने वाली है। खाली जाकर के खड़ा रहने का क्या मतलब है? जी प्रभु जी, अंदर से खोखला है तो क्या देने वाला हूँ, क्या उसके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ? अगर लेकिन अच्छी माला होकर के मैं गया होगा तो मेरी कॉन्सियसनेस अच्छी रहेगी और वो कॉन्सियसनेस का बेनिफिट मैं दूसरे व्यक्ति को दे पाऊंगा, नहीं तो खाली खोखलापना हो जाएगा। प्रभु जी 26 जनवरी को जिस दिन 64 राउंड चैंटिंग था, आपने बताया था कि जो ब्रज विहारी प्रभु जी हैं शायद उनका नाम, कि उनके घर पे या कोई सेंटर पे प्रोग्राम था तो आपने मना कर दिया कि मेरा 64 राउंड्स है और मैं या तो नहीं आ पाऊंगा या फिर इसको चेंज करो। देन उन्होंने चेंज किया आपके लिए। तो मैं यही सोच रही थी कि प्रभु जी देखो 64 राउंड को नहीं छोड़ रहे, अपने प्रोग्राम को छोड़ दिया। और हम क्या करते हैं, कोई मतलब ये तो बहुत बड़ा स्पिरिचुअल प्रोग्राम है और हम लोग तो घर के प्रोग्राम के लिए माला छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी हमें तो वहां जाना है तो हम 64 नहीं कर पाएंगे, चलो आज यूट्यूब में 16 कर लेंगे। तो ये सब चीजें मैं नोट कर रही हूँ और इनसे आई एम टेकिंग इंस्पिरेशन। लेकिन माता जी बिकॉज आई हैव अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ दैट, उन्होंने कल मेरा वही होने वाला है। कल जो है वो लोग ने वो प्रोग्राम जो 26 जनवरी को था ना, वो उन्होंने कल प्रोग्राम रखा है और वो प्रोग्राम जो है संडे को रख दिया। तो ब्रज विहारी प्रभु सुबह में 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक रहेगा प्रोग्राम और फिर प्रसाद सब खत्म होते होते 2:30-3 बजने वाला है। तो जो है मैंने बोला कि भाई मेरा जो है 8:30 बजे तक तो मैं निकल नहीं पाऊंगा इधर से, तो रूल है, रूल मैं पहला फॉलो करूंगा। तो फिर उन्होंने मुझे हमको परमिशन दिया है कि तुम 8:30 बजे यहाँ से निकलो, 8:30 में खत्म हो, 8:35 8:40 को निकल जाओ और हमारा मीरा रोड यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से तुम मीरा रोड 9 बजे के पहले आ जाओ। दूसरे लोग का 8 बजे को आप परमिशन है, 8 के बाद में वो लोग अलाउड नहीं है, हमको 9 के बाद में हमको अलाउड नहीं करने वाले। तो हमको परमिशन दे दिया उन्होंने, लेकिन वेरी वेरी क्लियर दे हैव चेंज द शेड्यूल जस्ट बिकॉज
आई टोल्ड हिम, मेरे को अगर रिक्वेस्ट है मेरा ये 64 भी मिस नहीं करना है और ये प्रोग्राम भी मिस नहीं करना है। तो कल ये किया, तो फिर मैंने भी थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिया कि कल रात को दोपहर में बहुत लेट हो जाने वाला है सबको मिलने का ये वो, तो कल शाम को मैं थर्सडे का, कल संडे इवनिंग क्लास में नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत हेक्टिक हो जाएगा। लेकिन आई एम वेरी क्लियर कि एज फार एज पॉसिबल आई वांटेड टू डू बोथ द थिंग्स टुगेदर, क्योंकि मेरे को जपा का नरिशमेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इज इट ओके माता जी? Thank you so much, Prabhuji, for inspiring us every day from your behavior, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Please pray for me. मेरे में प्राइड और ईगो ना आ जावे। मेरे को ऑलरेडी 59 साल हो गया है, अभी मैं ज्यादा जीने वाला नहीं हूँ माता जी, लेकिन मुझे हमेशा डर लगता है कि किधर मैं फंस ना जाऊं। सो प्लीज प्रे फॉर मी। हरि बोल, हरे कृष्ण। यस पार्थ गोविंद जी। जी we have 4 to 5 hands raised, क्या करना है? तो we will go on. प्रभु जी मेरे को मैं बात करूं because I have tomorrow I don't have to give that another class now, so I have time. We can definitely finish. You don't have any problem na Prabhu? No problem. Then we'll finish it up. Finish. Yes Mata ji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Please forgive me if something went wrong. I'm so sorry. And first of all, I'm so grateful to you for this Japa program. Because of this हिंदी group में बात हिंदी, can you speak in Hindi? Sorry Prabhuji. ये जपा प्रोग्राम के लिए मैं बहुत आपकी आभारी हूँ प्रभु जी। नॉट केवल आपकी ही नहीं, पूरे टीम और सभी डिवोटीज की मैं आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे 2 पॉइंट्स हैं प्रभु जी। एक तो ये कि आई रिक्वेस्ट यू इफ पॉसिबल प्लीज आप पेरेंटिंग पे एक सेशन ले सकते हो क्या? और दूसरा ये कि हम पेशेंस कैसे मेंटेन करें? आपने एग्जांपल दिया था एक लेक्चर में, प्रभु रामचंद्र का सब कुछ ले लिया, मतलब उनका राज्याभिषेक तो हुआ ही नहीं और उनको घर से 14 साल के लिए बाहर जाने के लिए बोल दिया, आई मीन जंगल में रहने के लिए बोल दिया, वनवास बोल दिया। तो वो टाइम पे सीता माता ने कितना पेशेंटली हैंडल किया। ठीक है, मेरे हस्बैंड को इसे बोल दिया आई विल डू दैट और मैं कर लूंगी, लेकिन मेरे साथ कैसे, अभी मुझे 3 साल का बेटा है प्रभु जी, लेकिन उसने कुछ गड़बड़ कर दिया। अभी कल की बात में अगर बोल दूं, वो बहुत मस्ती कर रहा था, सो नहीं रहा था, उसकी दादी को भी परेशान कर रहा था। फिर कुछ तो ऐसे उसने फेंक दिया जो कि इम्पोर्टेंट था, तो मैंने उसको एक लाफा दे दिया। ठीक है, मैंने उस बाद में फिर उसको दंडवत प्रणाम करके उसको सॉरी बोला, कृष्णा के सामने भी मैंने माफी मांगी जब भी ऐसे होता है। लेकिन वो जो इंस्टेंट होता है कि मैंने पेशेंस रहना चाहिए। ठीक है, अभी वो फेंक दिया तो फेंक दिया, अभी वो चीज खराब हो गई, अभी हो गया, अब तो वो वापस नहीं आएगी। लेकिन वो पेशेंस कैसे मेंटेन करे प्रभु जी? मतलब कि सबका नेचर अलग अलग रहता है और वो सबका नेचर अलग होने की वजह से वो इतना जल्दी आपकी कंडीशनिंग, पास्ट कंडीशनिंग की वजह से हो सकता है ये चीजों में। उसके लिए 2-3 चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यू इंक्रीज योर कृष्ण कॉन्शियसनेस और हमेशा कृष्णा से याचना करते रहो कि मेरे में पेशेंस नहीं है। आपका क्या, मेरा भी यही हालत है। लेकिन इसमें एक दूसरा रास्ता बहुत अच्छा है। वो दूसरा रास्ता ये है कि व्हेनेवर यू फील इट, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा ऑकवर्ड काम किया है, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, उसके अंदर उसके बाद में 2 चीज करना चाहिए आपको। जो व्यक्ति जो है जिसके साथ में आपने गड़बड़ किया ना, उसके पास जाकर के माफी मांगा जैसे आपने मांगा। उस समय ऐसा मत समझ मैं माँ हूं और बच्चा छोटा है, माफी कैसा मांग सकता। नो, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ हार्ट टू हार्ट प्रोसेस। तो एक उसके पास से माफी मांगो और माफी मांगने के बाद में कृष्णा के सामने अपनी सिंसियरिटी बताने के लिए डू सम ऑस्टेरिटी टू प्रूव टू कृष्णा दैट आई एम सफरिंग, प्लीज हेल्प मी आउट। And the only reason I'm doing this austerity is only for one purpose, to get, because I cannot do it by my own endeavor. It is not possible. I want your mercy to help me out. And to prove, to get your mercy, I'm showing by my action that I really want it. उसके वजह से, और वो इतनी ऐसी ऑस्टेरिटी करने का कि जो ऑस्टेरिटी करने से जो है आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना होवे, आपका बच्चे के साथ में इनजस्टिस ना होवे, लेकिन आपको स्ट्रेस होना ही चाहिए। आपको स्ट्रेस होना चाहिए। और वो हिसाब से जब आप करोगे और वो ग्रेजुअली व्हेन कृष्णा विल सी दैट यू आर रियली सीरियस एंड यू रियली वांटेड टू कम आउट ऑफ इट, ग्रेजुअली गो अवे, इट कैन गो अवे।
Okay. Is it okay? Yes, Prabhuji. Thank you so much. और प्रभुजी जब आप वर्किंग पेरेंट के लिए क्या ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है कि वो अपने बच्चे के लिए be very bold and very straightforward, very bold. I'm seeing you for the first time, but I'll be very bold in this matter. As far as working parents are concerned, unless and until the parents really need it, that without mother going out and working, there will be survival is a big problem and financial instability is a big problem. Then there is no other option. We have to go out. But if that is not the case, then the mother should not go out and work. Very, very clear. You have brought one soul in your life. आपने एक आत्मा को आपके घर पे लाया है और उसको तुम जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शास्त्र बहुत क्लियर बोलता है कि जो आत्मा को आपने घर पे लाया है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आत्मा जो है, वो जीव जो है, वो जन्म मृत्यु के छेड़े में से हमेशा के लिए निकल जाए। नहीं तो हमको माँ को माँ बनने का हक नहीं, पिता को पिता बनने का हक नहीं है। और अगर वो नहीं कर सकते हो और आप रुपया कमाने के लिए जा सकते हो, तो that means we are not fulfilling the responsibility which Krishna wants to give us for the child. So I am very clear. Of course, it is a very controversial thing. लोग बहुत एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेरा बहुत कंसेप्शन, हम हमारी लाइफ की नेसेसिटीज कम कर देंगे, लेकिन हम बच्चे के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप बच्चे को पूछ लो कि तेरे को जो है ना 10 खिलौना दूंगी और 10 किलो और तेरे को 10 खिलौना चाहिए या तेरे को मम्मी चाहिए? आप बच्चे को पूछो, बच्चा हमेशा बोलेगा मुझे कोई भी खिलौना नहीं चाहिए, मुझे खाली मम्मी चाहिए। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है अच्छा नेसेसिटीज कम कर डालने का लाइफ में। हमको नहीं चाहिए, हम बच्चे को जो है एकदम सिंपल लाइफ जिलाए देंगे उसको, वेरी सिंपल है, लेकिन एकदम क्वालिटी लव, क्वालिटी केयर, क्वालिटी अटेंशन देंगे ना तो वो बच्चे को बहुत जबरदस्त नर्चरिंग मिलेगा। ये मेरा अनुभव है माता जी। सो इफ यू कैन गिव क्वालिटी टाइम ना, उससे कोई बड़ा चीज है ही नहीं। ये जॉब वाला प्रॉब्लम में क्या होता है, वो केयर वो जो सिस्टम होती है ना, दूसरे कोई फैमिली में जाने का और चिल्ड्रन को संभालते हैं, अभी वो माँ नहीं होती तो वो कैसा संभालेगा वो बच्चे को? उसका कॉमन होता है, वो टीवी और वीडियो के सामने बिठा देते हैं और बच्चे का कचरा ही डाल देते हैं। That we have no rights. We have no rights. No, Prabhuji, my in-laws are there and they look for my son, and I'm doing work from home. That is okay. That is okay. But still, work from home also requires lots of commitment. If the child is crying and the demand is there to complete your commitment, you have to give justice to the child. But if you are a housewife, you can definitely adjust it out. Anyway, this is a very controversial thing, but you have to think it over. This is the way it has to be solved. हमारे scripture में किसी माता जी ने जॉब किया नहीं है when she is a housewife. जानवा माता जी जॉब लेने नहीं गई है, विष्णु प्रिया जॉब लेने नहीं गई है, कोई नहीं गई है, सीता ठाकुरानी अद्वैताचार्य की वाइफ कोई जॉब लेने नहीं गए। Once they are married, they have to give care, they have to give justice to the house, to their in-laws, to the husband, to the children, to the guest, and you have to see to it that the house be properly taken care, and that is the responsibility of a woman. Okay, sorry Mataji, I am very bold. Please forgive me. Nahi Prabhuji. Thank you so much. I feel you are like my father or some senior who show me the path. Thank you so much. Yes, Parth Govind ji. हाँ, शेखाई। कहाँ से हो आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। आपका नेटवर्क ब्रेक हो रहा है जी। छत्तीसगढ़ से प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। छत्तीसगढ़ से प्रभु जी। हरे कृष्ण। डोनट प्रणाम। जी मैं अभी स्टार्ट किया हूँ सर प्रभु जी, और मेरा क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन था। सुबह उठ नहीं पा रहा प्रभु जी, 2 बार अलार्म लगाता हूँ तब भी
नहीं उठ पा रहा प्रभु जी। ठंड के कारण मन बोलता है कि ठंड है, चलो उठ मत, ऐसे। तो आपको जल्दी पहले तो सो जाने का है, और सो जाने का बाद जी में जी, भी सुबह में उठने 10 बजे उठते। तो फिर कमिटमेंट ले कि सुबह मैं नहीं उठूंगा तो इतना ऑस्टेरिटी करूंगा, और वो ऑस्टेरिटी के डर के मारे उठ जाओगे। जी 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 प्रभु। सेकंड क्वेश्चन ये था कि म्यूचुअल फंड में कौन से, मतलब किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी वो रहती है। फाइनेंशियल प्लानिंग, स्पिरिचुअल प्लानिंग का एक लेक्चर है, वो लेक्चर सुन लीजिएगा, उसमें सब क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। प्रभु जी, ये क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी और ये वेब 3.0 ये सब जो आ रही है, क्रिप्टो करेंसी, ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड को। मैंने अभी स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट छोड़ दिया है, मेरा लिंक इतना नहीं रहा है, तो मुझे ये सब चीज बेसिकली सट्टा है। जी जी, ये सब सट्टा है, लेकिन आई नॉट ब्लंटली से, मेरा खुद का भी नॉलेज नहीं रहा है उसमें, क्योंकि मैं एक्टिव। लेकिन यू शुड बेसिकली, अभी तक तो वो सट्टा जैसा ही दिख रहा है प्रभु। इट इज अ स्पेकुलेशन, सो यू शुड नॉट गो फॉर इट। जी जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे बोल। कृष्ण माता जी, सत्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले your father or somebody who is there in Australia, is he related to you? नो प्रभु जी। No. ओके ठीक है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपके लेक्चर सुन के बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं लाइफ में। और प्रभु जी, इस वक्त आई एम इन +2 स्टैंडर्ड, और मैं छोटे छोटे बच्चों को क्लासेस भी देती हूँ यहाँ पे अमृतसर में। पर प्रभु जी, क्या होता है कि जब कोई थोड़ी सी तारीफ कर दे, या फिर 2-3 दिन सुबह जल्दी उठ जाओ और अच्छे से साधना हो जाए, तो फिर अंदर एकदम से प्राइड आना शुरू हो जाता है। और फिर जब वो प्राइड आता है तो फिर नेक्स्ट सारा का सारा हफ्ता बिल्कुल भी नहीं उठ पाती। फिर मैं सोचती हूँ कि ये सारे लोग भी तो जपा सेशन में सारे उठ रहे हैं, उनको तो नहीं आता, मेरे को ही क्यों सिर्फ इतना ज्यादा एकदम से 2-3 दिन। सिर्फ ये नहीं कि मैं पूरा हफ्ता कर रही हूँ, सिर्फ 2-3 दिन करूंगी, फिर उसके बाद इतना प्राइड आ जाएगा कि सारा का सारा हफ्ता निकल जाता है। फिर मैं ट्राई करूंगी, और फिर मैं उठूंगी, और फिर कोशिश करूंगी माला करने की अगली बारी से। फिर लगता है कि नहीं, ये तो मैंने अपनी खुद की साधना से इसको ओवरकम किया है, इसमें कृष्णा ने क्या किया है, तो फिर इसका एक और प्राइड आ जाता है। तो फिर ये प्लीज प्रभु जी बताओ, मैं इसे कैसे ओवरकम। माता जी, आप जब भी जपा करो ना, तब एक माला जब भी खत्म होता है तब हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद बोलते हैं ना, फिर वो बोलने के बाद में फिर आपको एक चीज करना है। दिस इज व्हाट आई डू आल्सो, आई टेल यू, मेरा भी यही प्रॉब्लम है माता जी। सो इन दैट विद श्री कृष्ण चैतन्य के साथ में, फिर देन यू हैव टू से वन वर्स ऑफ शिष्टाष्टकम तेनारपि सुनिचेन। वो एक आपको पता है ना वो वर्स कौन सा है? हाँ, तो दैट यू वर्स यू हैव टू प्रे, और वो वर्स के बाद में सीधा कृष्णा से याचना करना है, कृष्णा इफ यू आर हैप्पी विथ मी ना, तो मुझे इसमें से बाहर निकलना, इसमें मैं फंस गया हूं मैं, अगर मैं इसमें से नहीं निकलूंगी ना तो मेरे लिए कोई होप ही नहीं है। इट इज लाइक जो है, आपने बहुत साधना किया और फिर प्राइड आ गया। तो हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं, हाथी जो है नदी में स्नान करने जाता है, फिर नदी में स्नान करने के बाद में फिर वापस मट्टी अपने शरीर पर डालता है, तो क्या पाया? एग्जैक्टली उसी तरह से जो है, अगर हमने जपा अच्छा किया लेकिन प्राइड आ गया तो वापस 0 हो जाता है, और फिर वापस हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर एडवांसमेंट नहीं कर सकते। Krishna can appreciate, or Krishna can adjust anything and everything, but Krishna cannot appreciate pride. Krishna is very serious about pride, और pride का एकदम ऑपोजिट है ह्यूमिलिटी। और जो व्यक्ति ने ह्यूमिलिटी दिखाया ना, कृष्णा इतना फिदा हो जाता है। हमने जो है अभी पिछले कुछ सनातन गोस्वामी का कुछ एग्जांपल दिया था चैतन्य चरितामृत के अंदर, ऐसा बताया महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया था, इट इज ह्यूमिलिटी अलोन एंड नथिंग एल्स दैट कैन कॉन्कर द हार्ट ऑफ द लॉर्ड, बट दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्राइड इज नॉट, व्हेन प्राइड इज वेरी डिस्टर्बिंग। तो हर जपा के बाद, हर माला के बाद में यू हैव टू से त्रिणारपि सुनिचेन, एंड यू हैव टू रियली प्रे टू द लॉर्ड, कृष्णा मेरे को संभाल लो, मैं फंस ना जाऊं।
And if you are sincere, Krishna will definitely take care of you. हरि बोल प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि एक्चुअली प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 98% हमारा चैंटिंग पे स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड रहता है। तो मुझे ये पता है कि प्रभुपाद चीट नहीं करेंगे, तो ये परफेक्ट है, जो बोल रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। और सिर्फ प्रभुपाद नहीं, जितने भी सेंटली पर्सन है, जैसे कि तुलसीदास हो गए या फिर कोई भी हो गया, वो चैंटिंग पे ही फोर्स करते हैं। तो वो तो करेक्ट है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट मेरा ये क्वेश्चन है कि वो है, ट्रू है, बट ऐसा क्यों है? ऐसा जैसे 9 प्रोसेस रहते हैं डिवोशनल सर्विस के, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, ये सब 9 प्रोसेस रहते हैं, तो उसमें चैंटिंग ही क्यों एकदम हाई प्रायोरिटी पे रहता है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना चैंटिंग का टेस्ट बढ़ाना है। उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैंटिंग का टेस्ट इतना है नहीं। प्रभु जी, इस सबका प्रॉब्लम है प्रभु, आप अकेले नहीं हो। यू आर ओपन टू टेल यू आर ओपन, वी आर नॉट ओपन, दैट्स द ओनली डिफरेंस। प्रभु जी, पहला चीज ये है कि कलयुग के अंदर हरि नाम इज एवरीथिंग। ये हमारे आचार्यों ने भी कहा है, एक स्क्रिप्चर ने भी कहा है, बहुत क्लियर है। अभी दूसरे प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, हम डीटी वर्शिप भी करते हैं, हम प्रीचिंग भी करते हैं, सब चीज करते हैं प्रभु जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करना चाहिए। लेकिन प्रभु जी, वो सब चीज करने का हेतु एक ही है कि आपको चांटिंग में टेस्ट बढ़े। वेरी सिंपल। अभी आपको जो है प्रभु जी चांटिंग का टेस्ट नहीं है, लेकिन दूसरी सब चीज के अंदर आपका टेस्ट है। आपको जो है प्रभु जी प्रीचिंग में टेस्ट है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में टेस्ट है, कुकिंग में टेस्ट है, आपको जो है प्रभु जी क्लास देने में टेस्ट है, या तो आपको प्रभु जी आपको जो है बाहर जाकर के प्रचार करने में टेस्ट है। जो भी है आपको, जो भी आपका टेस्ट है, वो टेस्ट जो है प्रभु आप उसको डेवलप करो। लेकिन हेतु एक ही होना चाहिए कि ये टेस्ट मैं कृष्णा को इतना प्रसन्न करूं कि वो टेस्ट के सहारे मेरा जपा सुधर जाए। महाराज has told me once कि all the processes of other devotional service should help your japa. That is the perfection of your life. So if you have this consciousness, now Krishna will take care of you. Is it समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ प्रभु? हाँ प्रभु, समझ में आ गया। That is what we have to do it. Because in कलयुग का प्रभु जी, अभी हम दीक्षा भी लेते हैं। जब भी आप अगर हमारे इस्कॉन का जो दीक्षा होता है, वो दीक्षा के अंदर जो है प्रभु हम जो है हरि नाम पे भाव लेते हैं। हम 16 माला करने का, हम ऐसा भाव नहीं लेते कि रोज मैं कुकिंग करूंगी या कुकिंग करूंगा, मैं रोज डीटी वर्शिप करूंगा, वैसा उसका भाव नहीं लेते हम लोग। वो भी हम करेंगे, लेकिन वो करने का हेतु एक ही है कि मेरा वो 16 माला का जो मिनिमम 16 माला है, उसका जो है मेरा कमिटमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसकी क्वालिटी बढ़ती जाए। दैट इज द मेन रीजन। इज इट ओके प्रभु? ओके प्रभु। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्ण। यस पार्थ जी। सीता माता जी है, she can't own the video, she can ask question. Okay. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। सॉरी प्रभु जी, पहले तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ आज। तो दूसरी एक रियली थैंक यू। और मैं अभी इस फोरम पे राधारूपा माता जी को भी थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे आपसे इंट्रोड्यूस किया और मैं इस जप में जुड़ पाई। तो रियली थैंक यू। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी तक शास्त्रों में क्या लिखा है, जो स्टैंडर्ड है, वो हम पढ़ते आ रहे थे कि स्टैंडर्ड ऐसे है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए भक्ति में। लेकिन उसको स्टैंडर्ड को हम ऑफ कोर्स गृहस्थ लाइफ में रहते हुए, फैमिली को देखते हुए वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब मैं आपके लेक्चर सुने, आपकी बात सुनी, तो हाउ टू अप्लाई प्रैक्टिकली दोज थिंग्स, मैंने ये सीखा आपसे। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि मैं उस चीज को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करूं, ये मैं लर्न कर पा रही हूँ अभी। और जो अंदर में थोड़ा गिल्ट रहता था, वो भी मेरा थोड़ा कम हुआ है। बट अभी एक चीज ये हुई रिसेंटली, मतलब मैंने बहुत दिन, ज्यादा नहीं हुए मुझे ज्वाइन करे हुए, लेकिन अभी 64 राउंड्स करे थे सभी भक्तों ने 26 जनवरी पे। तो उस दिन मेरा बहुत मन था कि मैं भी करूं, लेकिन
मेरा हॉलीडे नहीं था बिकॉज आई वर्क फॉर यूके कंपनी, तो उनका ही कैलेंडर फॉलो होता है, तो 26 जनवरी पे भी छुट्टी नहीं थी। तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज को फील कर रही थी कि मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे करूँ। 32 राउंड्स आई डू बिकॉज मेरा जो सन है 4 years का, वो 9 o'clock तक उठता है, 9 और 9:30 तक सोता है, अभी भी वो सो रहा है, तो मैं कर पाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं कभी ऐसा, मतलब मैं कैसे कर पाऊँ, मैं 64 राउंड्स 12 o'clock तक मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं चाह कर भी नहीं कर पा रही। तो मैं अंदर में थोड़ा सा गिल्ट फील कर रही थी कि सभी भक्त कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। इस चीज से कैसे मैं, मतलब कैसे मैं सॉल्व करूँ? माता जी, गिव सम पेशेंस इन योर लाइफ। आपके पहला क्या लाइफ थी, और आपको उसमें से जो है, आप, आई डोंट नो यू बिकॉज आई हैव नेवर मेट यू, लेकिन आप थोड़ा विचार करिए कि आप जो है पहले 16 माला आपकी कैसी हो रही थी, चेक करिए माता जी। जी प्रभु जी, पहले तो मतलब ऐसे ही होती थी। माला होती होगी माता जी कि हमने 16 माला करने के बाद में हमको ऐसा लगता ही नहीं कि हमने 16 माला किया है। ऐसा नहीं होता था, वही मैं कह रही हूँ प्रभु जी, पहले तो 16 माला ही करती थी मैं, आपसे जुड़ने के बाद ही 32 राउंड्स पे मैं कर पा रही हूँ, वरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 32 माला पर डे कर सकती हूँ, मैंने कभी नहीं किए, बहुत ही रेयरली मैंने किया। तो आप 16-32 करते, लेकिन हमारी क्वालिटी भी देखिए माता जी, क्वालिटी ऑल्सो मेक्स सो मच नरिशमेंट यू गेट इट। 16 माला भक्तों के संग में चैंटिंग करने के बाद में आपका नरिशमेंट देखना, कितना अंदर से संतुष्टि होती है, कितना संतुष्टि भी होती है प्रभु जी, और पूरा होल डे इतना अच्छा निकलता है, होल डे लगता है कि आज मैंने कुछ किया है कृष्ण भक्ति में। तो देन यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू कृष्णा। इतना तो कृष्ण ने अभी दे दिया है, थोड़े समय और पेशेंस रख करके इतनी सिंसियरिटी बताओ, कृष्णा रास्ता निकालेंगे, डेफिनेटली निकालेंगे। माता जी, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग आल्सो, I was a stock broker and very leading firm of the Bombay Stock Exchange. We were 5th in Bombay Stock Exchange, and I was a partner over there. और वो भी मैंने 21-19 साल मैंने वहां पे काम किया है। लेकिन I can tell you, somehow Krishna has really helped me. मैंने कहां पर भी मेरा साधना में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने मेरे को संभाल लिया। वरना आपको पता नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट इन फाइनेंस मार्केट। स्टॉक ब्रोकर की लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है, कुछ भी दुनिया में कुछ भी होता है और उसको टेंशन आता है। आई कैन टेल यू, परसों जो है यूनियन बजट है। आई हैव टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, मेरे को जो है इमीडिएटली जो है जैसा खत्म होगा, मेरे को यूनियन बजट में बैठने का है, और फिर उसमें जिसका बजट आएगा टेंशन चालू हो जाता है। ऐसे सब होने के बावजूद आई वाज एबल टू मेंटेन माय कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड आई कैन टेल यू दिस इज एक्सक्लूसिवली कृष्णास मर्सी इन माय लाइफ। तो जैसा कृष्णा ने मेरे को मदद किया, आपको भी कृष्णा मदद करेंगे। इतना तो आपको अभी सर्वत में दे दिया है, थोड़ा पेशेंस रखो और सिंसियरिटी बताओ, कृष्णा विल टेक केयर। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी, इट्स रियली रियली हेल्पफुल। और मैं क्या बोलूं, मैं कम टाइम आई विल प्लान टू मीट यू in Mumbai. I will come definitely. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Parth Govind ji. Last question, Prabhuji, from Sujit. Oh, Dubai. Okay, Hari Bol, Mataji. Kahiye. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एंड प्रभु जी, मैं कुछ अगर गलत बोलूं तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं भी गलत बोलूं तो मुझे माफ कर देना माता जी। कहिए। प्रभु जी, मैं 2018-19 से आपसे जुड़ी हुई हूँ। मैं पहले YouTube पे आपके वीडियो देखती थी, उन्होंने मुझे अंदर तक हिला दिया था। उसके बाद मैंने 16 माला जाप करना शुरू किया, ये मंगला मतलब सुबह 4 बजे उठ के, और वो अभी तक नियम से आ रहा है मेरा, कि वो नियम, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैंने तोड़ा नहीं है। वो सिर्फ आपकी वजह से है। और 2 साल से एकादशी पे 64 राउंड करती हूँ। मैं जूम पे नहीं आ पाती हूँ क्योंकि 1.5 घंटा टाइम का डिफरेंस है। फिर मैं उठती हूँ, मेरे पास 2 डेटीज भी हैं, तो मैं यूट्यूब पे आपके साथ रोज सुबह जुड़ती हूँ, और इसके लिए आपका बहुत बहुत मतलब आभारी हूँ मैं, कि प्रभु जी मुझसे जैसे श्लोका वगैरह सब याद नहीं होता, लेकिन जापा मैं कितना भी कर सकती हूँ। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। एंड प्रभु जी, ये चीज है कि 2018 से मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया। जैसे जो
ठीक चल रही थी, जैसे आप बताते हैं एकदम सब कुछ खत्म हो गया, 0 पे आ गई। और समझ नहीं आता कैसे। तो पर जाप जो है वो ऐसी चीज है कि जो मुझे शायद हिम्मत दे रहा है मैं लड़ूं उस चीज से। पर अभी प्रभु जी मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास 2 बेटियां हैं, ये है, किस तरह से, जैसे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि अब क्या करो। और आप जैसे बताते हैं, हमने अपने आप को बहुत समेट भी लिया, पर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और इतना सब कुछ हो गया कि आप सोचेंगे कि जिंदा कैसे हैं हम लोग अभी, सब चीजें कैसे करके। और प्रभु जी अभी कुछ दिन पहले भी मेरे मंदिर में जैसे डेटीज रहता है, नरसिम्हा जी की मूर्ति है, उस पे पूरा ही जल गई वो नरसिम्हा जी की पूरी चल गई। लड्डू गोपाल जी हैं वो बिल्कुल ठीक है, नरसिम्हा जी की मूर्ति चल गई। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं, जैसे कई बार जब जपा में परेशान होते हो तो आप मैकेनिकल करते हो या परेशानी में करते हो, कई बार आप बहुत दिल से करते हो, कई बार आप तो क्या ऐसा होता है कि आपसे कुछ गलती हो रही है? ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम कुछ में से कोई गलती हो रही है, क्या भगवान नाराज हैं या कुछ है, या क्या चीज है? देखिए माता जी, मुझे आपका पहली बार मैं आपको मिल रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है आपका, और आपका मुझे कोई डोमेस्टिक मैटर्स भी पता नहीं है, तो एकदम मैं क्लियर कट ऐसा कुछ बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ओवरऑल प्रिंसिपल मैं बता सकता हूँ। ओवरऑल प्रिंसिपल जो है माता जी, अगर आपने आपका हरिनाम जपा बहुत ही लाइफ में सीरियसली लिया है, तो मेरे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं, when you take seriously Krishna consciousness, Krishna also takes very seriously for you। उसको जो है वो आपके लाइफ के अंदर आपका डिटैचमेंट, आपका जिधर भी अटैचमेंट है वो अटैचमेंट ठक 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 काटने की कोशिश करता है, जिससे आपका जपा ज्यादा फोकस, ज्यादा कमिटेड, ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, जिससे आपको समझ में आवे हरिनाम के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है दुनिया में। हो सकता है ऐसा कुछ कृष्णा ने प्लानिंग किया होगा, आई डोंट नो, मेरे को आपका कुछ पता नहीं है, तो मैं ऐसा एकदम ब्लैंकली नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, हो सकता है कि कृष्ण ने आपको ऐसा किया होगा। अभी अगर आपने आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, आप बता रहे थे मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया है, एवरी डे आई एम वेरी सीरियस अबाउट माय चैंटिंग, देन यू डोंट वरी माता जी, दूसरी सब चीज भूल जाओ, कृष्णा आपको संभाल लेंगे। आप आपकी सिंसियरिटी अगर आप बता रहे हो कृष्णा को, कृष्णा इतने निष्ठुर नहीं है कि आपको छोड़ देंगे। कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू। हाँ, अभी रहा सवाल आपका एक्सटर्नल जो भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स में जो है माता जी हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम है। हाँ, आपका थोड़ा ज्यादा हो सकता है अभी, तो वो जो प्रॉब्लम ज्यादा है ना माता जी, द बेस्ट ऑप्शन इन दिस सिनेरियो इज कृष्णा के सामने रो लो। जैसा आप मेरे सामने रोते हो, उससे बेहतर है कृष्णा के सामने हृदय से कृष्णा के सामने रो, और वो रोने के बाद में जपा करो, और कृष्णा को बता दो तुम्हारी क्या स्थिति है। कृष्णा आपको अंदर से कोई शक्ति दे देंगे, वो जपा के सहारे और आपकी कॉन्सियसनेस के वो उसमें जो रेसिप्रोकेट करके, और वो शक्ति के सहारे माता जी भले एक्सटर्नली आप कितनी भी खराब स्थिति में रहोगे, फिर भी आपको इतना बाहर ट्रांसेंड कर देंगे कि वो ट्रांसेंड करने के बाद में आप दुखी, बाहर से दुखी हो लेकिन अंदर से आप आनंदित हो जाओगे। प्रभु जी एक मिनट मेरे को खत्म करने दो। लेकिन उसके लिए आपको आपकी सिंसियरिटी कृष्णा को बतानी पड़ेगी। देखो माता जी, मैं आपको बोल दूंगा, आप मुझे बोल दोगे, लेकिन आप अगर कृष्णा के हृदय में छूने के लिए आपको इन एंड आउट कृष्णा के सामने क्लीन होना पड़ेगा। आई कैन चीट यू, यू कैन चीट मी, बट वी कांट चीट कृष्णा। अगर वो क्लीन होगा, कृष्णा विल रन टू हेल्प यू आउट। अभी आप बताइए क्या है। ये चीज तो ठीक है, आपने बोला था, इसलिए कई बार मैं ऐसे ही करती हूँ कि कृष्णा के सामने सारा खोल देती हूँ और बोल देती हूँ कि कृष्णा सब कुछ आप ही का है, संभालो, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चों की वो तो पूरी करनी है। और ये भी सही बात है कि कई लोग मुझे कहते हैं कि मैं इतना खुश कैसे रह सकती हूँ ऐसे हालात में। मे बी वो बिकॉज ऑफ जपा मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आती है कि आप हमेशा हंसते बोलते रहते हो, चीजों को वैसा लेके चलते रहते हो। पर प्रभु जी अब लाइफ में वो एक स्टेज आ गई है कि अभी लगता है कि चीजें अब थोड़ी सी ठीक कर दो, कि अब इतने साल हो गए, अब नहीं सहन पा रहे हैं कृष्ण, थोड़ा सा ठीक कर दो। जो आपसे हो सकता है उतना करिए, जो आपके कंट्रोल के बाहर ही है उसमें आप क्या कर सकते हो। जी हाँ, वो तो नहीं प्रभु जी, कई बार
जो आपके आपके पास कंट्रोल में है और आप मैनेज कर सकते हो, तो आप उसको करिए। यू हैव टू डू द नीडफुल। हाउस होल्ड लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली होना पड़ता है, ऐसा ही फेनेटिज्म नहीं चलता है। जो आपको करना है वो आप करिए। थोड़ा बोल्ड डिसीजन लेना है तो बोल्ड डिसीजन लइए। कृष्णा की कंसेंट और आपका जपा में से आपको अंदर स्ट्रेंथ मिल जाती है और आपको अंदर से कन्विक्शन आता है कि ऐसा करना है, करिए, प्रैक्टिकल होइए। लेकिन ऐसा भी प्रॉब्लम आएगा जिसका कोई सॉल्यूशन दिखता ही नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम्स रहेंगे ही, और सबके लाइफ में ऐसा आता है। कोई प्रॉब्लम उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो जैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कृष्णा इज द ओनली सॉल्यूशन माता जी। कृष्णा इज द ओनली सॉल्यूशन। नहीं, प्रभु जी को लगा 2 साल पहले आग लगी थी तो पूरे घर में ही लग गई थी। अभी फिर लास्ट फ्राइडे को फिर मेरे मंदिर में लगा, सिर्फ नरसिम्हा जी के में लगा, तो वो मेरे को हिला दिया कि बार बार ये क्या हो रहा है। और मैंने उसी दिन विपुल प्रभु जी को भी बोला था। मैं इस फॉर्म पे विपुल प्रभु जी को धन्यवाद देती हूँ कि बार बार वो मुझे आपसे जोड़ते हैं और उनको मैं अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे आपसे जोड़ा था, मैसेज किया था, तो मेरे को अंदर से इतनी खुशी हुई थी। अभी तक मैं आपको वीडियो पे सुन रही थी, अब एटलीस्ट मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, आपसे कनेक्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए विपुल जी को भी दंडवत प्रणाम मेरा। और मैं यही सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, मंदिर में क्यों आग लगी, कि मैं कोई गलती कर रही हूँ, मुझसे क्या अपराध हो गया। तो मैं वही चीज ऐसे समझ नहीं तो मुझे मैं तो आउटसाइडर हूँ, मतलब मुझे कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन मालूम नहीं है। लेकिन एक चीज आप करना, आप जो है कृष्णा के सामने याचना करना कि ये कुछ भी हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कृष्णा मुझे जो है इंस्पायर करिए कि जो है मुझे क्या इसमें सीखना है। हो सकता है माता जी, आई फील इट, आई डोंट नो, कि आगे चल करके कृष्णा आपको कोई इंडिकेशन देना चाहते हैं कि हो सकता है आगे चल करके कुछ दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, जो एक इंडिकेशन दे रहा है। और वो इंडिकेशन के सहारे आपको कृष्णा बोल रहे हैं कि प्रिपेयर रहना, तैयार रहना। और वो तैयारी जो है हरिनाम, वैष्णव का संग अच्छी तरह से पकड़ करके रखना, जिससे वो जब तकलीफ आपकी लाइफ में आवे तब उसके सामने आप फेस कर सको और उसमें से भी ट्रांसलेट कर सको। हो सकता है कृष्णा एक इंडिकेशन दे रहे हैं, मुझे पता नहीं है माता जी, आई कैन नॉट कमिट, बट हो सकता है। और जो है आप जो है अच्छी तरह से हरिनाम लेते रहो, कृष्ण आपको इंस्पायर करेगा। आपका इंटेंशन चेक करना माता जी, आपका इंटेंशन चेक करना कि मेरा इंटेंशन तो चीटिंग बाजी नहीं है ना। अगर आपका इंटेंशन क्लीन है, मेरे को किसी को धोखा देना नहीं है, मेरे किसी को चीटिंग करना नहीं है, और पहले कुछ मैंने गड़बड़ किया है तो उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तैयार हूं, अगर वो क्लियर है देन यू शुड नॉट बी वरीड। ओके प्रभु जी, जी धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। डन माता जी, आई डोंट नो यू, मेरे को कुछ पता नहीं है, आई जस्ट स्पीकिंग इट आउट। नहीं प्रभु जी, मैं किसी से बात करूं और आपसे ज्यादा मैं किसी का सोच नहीं पा रही थी कि किससे बात करूं। मैं बिल्कुल फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं अपनी दिल की बात आपसे कर पाई, आपसे बोल पाई, इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू। हरे कृष्ण, हरि बोल। यस मनोज प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? यस, परफेक्ट। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आई मीन क्या कैसे बताऊं प्रभु जी, बहुत फॉर्चुनेट है, मतलब शुरुआत में ये सब चीज मिल गई एसोसिएशन और इसको पकड़ के बैठे हुए हैं। तो प्रभु जी आज मेरा कोई प्रश्न नहीं है, एक बस गुजारिश थी। बेसिकली माय वाइफ पहले डीटी वर्शिप्स में करती थी और कई टाइम से वो सोच रही थी कि जगन्नाथ डीटीज को हमारे छोटे अल्टर में लाया जाए, और पता नहीं कैसे ये सब मतलब कृपा हो रही है प्रभु जी। ये सब मेरे ख्याल से इसी का ही हमें कुछ वो मिल रहा है। और हमने एक मित्र थे उनसे बात की, उनके तो पूरी से जुड़े हुए थे, उन्होंने सीधा डीटीज ही भेज दी हमारे घर में। तो बस आज एक गुजारिश है प्रभु जी कि आप और सारे डिवोटीज उसका दर्शन ले लें और हमें ब्लेसिंग दे दें कि हम हमेशा ऐसी साधना में टिके रहें प्रभु जी। 1 मिनट में कैमरा को राउंड करता हूँ। वाह। ये पहले कृष्णा और राधा रानी तो थे हमारे पास, लेकिन अभी हमने जगन्नाथ डीटीज को अभी ले आए और रखनी है प्रभु जी। तो बस आप आशीर्वाद देते रहिए और सारे डिवोटीज आशीर्वाद देते रहिए कि हम लोग ऐसे टिके रहें प्रभु जी, बस और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी प्रभु, कृष्ण में क्या क्या परिवर्तन आता है प्रभु। लोग जो है घर के अंदर जो है, जब भी आप कुछ भी चीज करते हैं तो घर के अंदर दूसरी सब सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीज मंगवाते हैं, लेकिन जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आप सीरियस होने लगते हो तो आप जो है प्रभु जी, आपका फोकस सिर्फ कृष्णा ही हो जाता है।
और कृष्णा फोकस हो जाने की वजह से जो है आप जो है धीरे 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 आपका एवरीथिंग गोज एंड मोल्डिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. आई कैन टेल यू, आई एम नॉट ए डिवोट, आई एम नॉट ए मैन ऑफ डीटी वर्शिप, बट माय सन इज कंप्लीटली इन डीटी वर्शिप. प्रभु जी, आई हैव सीन इन माय सन, हमारे घर के अंदर जो है ना प्रभु, अभी ऐसी स्थिति होती है कि जो भी कुछ घर में से वो लेके आता है ना, अरे वहां तक प्रभु पेंसिल भी लाएगा, पेन भी लाएगा, अरे वहां तक कि चप्पल भी लाएगा, वो भी पहले डीटी को ऑफर किया बिना वो वापरेगा नहीं. तो वो एकदम द डीटीज आर बिकमिंग होल एंड सोल, दे आर द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ आवर हाउस. और वो जो है और इतना सुंदर माहौल बन जाता है प्रभु जी, इतना सुंदर माहौल बन जाता है. और वो माहौल की वजह से जो है ना प्रभु, घर का वातावरण चेंज हो जाता है प्रभु. We understand the Lord is the Lord and Master is not me, is the deities. They are going to take care of everything, and that makes so much difference in your house, Prabhuji. So wonderful. Thank you very much, Prabhuji. So thank you so much, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Margot. Is it clear? Yes, we are done. Yeah.